الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الأزمان والأعمار. الحمد لله التواب والشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله سبحانه، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. الحمد للہ. الحمد للہ. الحمد للہ. جی، اور آپ لوگ آج کتنا ایکسائٹیڈ ہیں بھائی؟ آپ کا ایکسائٹمنٹ لیول کیا ہے آپ سب کا؟ بہت بہت زیادہ. اوکے، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. بہت زیادہ. الحمدللہ. اور کون کون ایکسائٹیڈ ہے؟ سسٹر فاطمہ، سسٹر لائبہ، سسٹر منال، سسٹر نبیہہ، سسٹر قمر. آپ بتائیں. آپ لوگ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہم سب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا مائی ڈیئر ینگسٹرس. اینڈ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی نشید آپ سب کے لیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. جی آ رہی ہے بات. الحمد للہ. بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم، بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم، بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم، بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم. مرحبا ويا هلا فيكم، انتم منا واحنا فيكم، بالمحبة نحييكم. يا هلا ويا هلا، مرحبا ويا هلا فيكم، انتم منا واحنا فيكم، بالمحبة نحييكم. يا هلا ويا هلا، يا هلا ويا هلا، ويا هلا ويا هلا، يا هلا ويا هلا، ويا هلا ويا هلا. حني قلبي على جبهة الخير هلا، حني قلبي على جبهة الخير هلا. يا هلا ويا هلا، ويا هلا ويا هلا، يا هلا ويا هلا، ويا هلا ويا هلا. حني قلبي على جبهة الخير هلا، حني قلبي على جبهة الخير هلا. Okay, so ahlan wa sahlan marhaba once again my dear youngsters. اور انشاءاللہ آج ہم جو سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہمارا جسٹ انٹروڈکٹری کلاس ہے. اوکے، تو آپ لوگوں نے تو مجھے اپنا انٹروڈکشن گروپ پہ بھیج دیا تھا. سو آپ لوگوں کو میرا انٹروڈکشن چاہیے. Should I introduce myself? یس. Okay, okay. اور کس کو چاہیے؟ Okay, so I am Ulia Haqqi and I am from Rampur and I am a youth just as you all are.
and I am here to guide you with the knowledge that I have regarding Islam and other things as well. Okay, we will be having lot of sessions here, and you have to interact with me. Okay, this class is not just a class; it's a discussion room. Okay, where you speak and I learn, where I speak and you learn. Okay, इंशाल्लाह. सो हमारा ये इंट्रोडक्टरी क्लास है वेयर यंग माइंड्स नर्चर का, और हमारे पर्पस क्या है क्लास का, तो हम ये इंशाल्लाह देखते हैं. देखिए, दिस क्लास इज फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ. ये क्लास जो है, ये मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं, तो ये क्लास एक यूथ ने स्टार्ट किया और आप सब यंगस्टर्स के लिए. और देखिए, हमारे ये 5 मेजर पर्पसेस हैं इस क्लास के. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्लाइड में. ये मेजर पर्पसेस हैं कि हम चाहते हैं कि आप यंगस्टर्स हैं, आप अल्लाह ताला के दीन से कनेक्टेड हो, क्योंकि आपको पता है कि जो अल्लाह ताला का दीन है वो दुनिया का सबसे बेस्ट रिलीजन है, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है. ओके, अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना. ये दीन इस्लाम को अल्लाह ने हमारे लिए पसंद फरमाया. क्यों? अल्लाह पाक ने बताया अल-यौम अकमलतु लकुम, कि आज के दिन मैंने कंप्लीट कर दिया. अकमल यानी परफेक्ट, अतमम यानी कंप्लीट कर दिया दीन. अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती, और अल्लाह पाक ने इस दीन इस्लाम को क्या कहा? एक नेमत कहा. तो ये दीन इस्लाम जो है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है हम सब के लिए. तो अल्लाह ताला ने इस दीन को हमारे लिए परफेक्ट और कंप्लीट बनाया है. वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम को हमारे लिए पसंद फरमा लिया. तो हम नहीं चाहते कि आप सब यंगस्टर्स जो कि स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और आप वहाँ के खुद स्टूडेंट होकर जानते हैं कि उसका हाल कितना बुरा है, वो लोग कितना ज्यादा दीन से दूर है. राइट? आप सोचे आपकी फ्रेंड्स होती होंगी, वो क्या करती होंगी? टीचर्स की बुराई करती होंगी. राइट? वो क्या करती होंगी? वो गीबत करती होंगी, वो मूवीज के बारे में बात करती होंगी, वो सॉन्ग्स के बारे में बात करती होंगी. सबकी फ्रेंड्स यही करती है ना? लेकिन आप यंगस्टर्स तो है ही, उसके साथ आपको एक बहुत प्यारा टाइटल अल्लाह ताला ने दिया है. और पता है वो टाइटल क्या है? मुस्लिमा, मोमिना. आप मुस्लिमा है और आप मोमिना है. ठीक है, तो फिर आपने इसको क्या करना है? इस टाइटल को प्रिजर्व करना है. और ये टाइटल तभी प्रिजर्व हो सकता है, तभी आप इसको महफूज करके रख सकते हैं जब क्या हो? आपके पास दीन हो. जब दीन नहीं होगा तो मुस्लिमा कैसे बन सकते हैं, हम मोमिना कैसे बन सकते हैं? राइट? तो इसीलिए हमारा पर्पस यही है कि हम आप सबको दीन से कनेक्ट कर सके, आपके कनेक्शन को अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग बना सके इंशाल्लाह. एंड दूसरी चीज ये है कि हमारा क्लास सिर्फ आप ये नहीं समझे कि बोरिंग लेक्चर्स होंगे, नहीं, बल्कि इस क्लास में आपको स्किल्स भी सिखाई जाएंगी. सोशल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हैं. तो इस तरीके की इंशाल्लाह आपको स्किल्स भी सिखाई जाएंगी इंशाल्लाह. तो हम आपको स्किलफुल मुस्लिमा बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह. और पर्सनल काउंसलिंग, आप ये मत समझें कि ये सिर्फ क्लास है, बल्कि अगर आपको कभी भी किसी काउंसलिंग की जरूरत है, किसी भी इस मुतालिक, ठीक है, आपका कोई फैमिली मैटर है, कोई पर्सनल मैटर है, तो उसके मुतालिक आप जो है हमें व्हाट्सएप के थ्रू हमसे मालूम कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टू फ्री देम फ्रॉम द शेकल ऑफ देयर माइंड. आपको पता है हम सब यूथ हैं, और जो सबसे क्रिटिकल एज होती है टीनेज वाली, यंगस्टर्स वाली, तो इसमें ना बड़ा माइंड शेकल होता है. इस माइंड में बड़े वसवसे भी आते हैं, है ना? इस माइंड में जो है वो अलग अलग तरह के थॉट्स भी आते हैं, नेगेटिविटी होती है, पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है इस टाइम पे, इस एज में. तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जो भी दिमाग में सवालात है उनको सॉल्व कर सकें, एंड इंशाल्लाह हम लोग आपकी गाइड और सपोर्ट रहेंगे इंशाल्लाह. ओके, सो आज का थोड़ा सा जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इंशाल्लाह हम सूरह ज़ुहा से स्टार्ट करेंगे. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى قسم है चाश्त के वक्त की वल्लैलि इज़ा सजा और कसम है रात की जब छा जाए मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और न वो बेजार हो गया है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा तुझे तेरा रब जल्द बहुत इनाम देगा और तू राजी और खुश हो जाएगा अलम यजिदका यतीमन फआवा क्या उसने तुझे यतीम नहीं क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी ववजदका ज़ाल्लन फहदा और तुझे राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी ववजदका आइलन फअगना और तुझे नादार पाकर गनी नहीं कर दिया फअम्मल यतीम फला तक़हर बस यतीम पर तो कभी सख्ती ना किया कर व अम्मा साइल फला तनहर और ना सवाल करने वाले को डांट डपट व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस और अपने रब की नेमतों को बयान करता रहे। तो ये सूरह ज़ुहा है जो कि अम्मा पारी की सूरत है, 93वीं सूरत है ये कुरान की। और इसमें हम पहले ये समझते हैं कि ये सूरत नाजिल कब हुई थी। तो दरअसल ऐसा हुआ था एक वक्त की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आना बंद हो गई थी। ठीक है, क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही आपको पता है क्या होता है? रेवलेशन, यानी अल्लाह पाक का पैगाम जो कि फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आते थे। ठीक है, ये क्या होती है? वही, रेवलेशन। तो जो वही जब आना एक बार क्या हुआ कि एक वक्त वही आना बंद हो गई। अब जो मुशरिकीन थे, यानी कि जो शिर्क करने वाले, जो कि अल्लाह पाक को नहीं मानते थे मक्का में, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा जो है वो परेशान किया करते थे, बातें किया करते थे कि ये क्या हो गया, तुम्हारे रब ने तुम पे वही नाज़िल करना छोड़ दी, वो तुम्हें भूल गया। तो उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डिप्रेस हो गए थे, वो परेशान हो गए थे, वो घबरा गए थे। तो अल्लाह ताला ने फिर ये पूरी सूरत नाज़िल की थी। लेकिन ये सूरत सिर्फ ये, देखिए कुरान जो है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नबी के लिए था, बल्कि ये कुरान तो हम सब के लिए है। ये सूरत आप ठीक है माना कि उस टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंडीशन देखकर नाज़िल हुई थी, लेकिन इसमें हमारे लिए भी लेसन्स हैं, इसमें हमारे लिए भी गौर व फिक्र करने की चीजें हैं। तो इंशाल्लाह हम आज इसको समझेंगे, क्योंकि इस क्लास, फर्स्ट क्लास जो आपका ये है, आप ये देखें कि आप यहाँ पर अल्लाह ताला के फेवरेट और चूजन बंदे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये क्लास ज्वाइन करना चाहते होंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होगा, उनके पास वो वसाइल, वो जराए नहीं होंगे जो इस वक्त आपके पास है। तो जो इस सूरा की आयत है ना कि ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और तुझे राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी, तो ये हम सब से कनेक्ट कर रही है कि हम लोग क्या है, हम लोग गुमराह थे, यानी कि हमें हिदायत नहीं थी हमारे पास, हम दीन से गाफिल थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको हिदायत दी है, हम सबको इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है ताकि हम कुछ सीख सके, हम अल्लाह से कनेक्ट हो सके। इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं।
देखिए चाश यानी उस वक्त को कहते हैं जब सूरज बुलंद होता है, ठीक है, जब पूरा दिन निकल आता है। तो अल्लाह पाक ने यहाँ कसम खाई है, ठीक है, अल्लाह पाक ने किसकी कसम खाई है? चाश्त के वक्त, यानी कि जब जो सूरज है वो पूरा निकल रहा है, वो जब ब्राइट होता है बिल्कुल एट इट्स पीक, ये उस वक्त की कसम है। और वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब छा जाए। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पे दो चीजों की कसम खाई है, दिन और रात। दिन और रात की कसम खाने का मकसद क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? आखिर अल्लाह पाक ने क्यों खाई कसम दिन और रात की? कोई बताएगा? What was the purpose of taking an oath of day and night? क्या पर्पस हो सकता है? अल्लाह पाक क्यों खा रहे हैं कसम? कसम तो इंसान तब खाते हैं ना जब उसको अपनी बात का यकीन दिलाना होता है, और अल्लाह पाक की बात में तो कोई भी कमी नहीं है, वो तो सच्चा है। फिर अल्लाह पाक ने यहाँ कसम क्यों खाई? जी कोई बताएगा? आप लोग सोच ले, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, सोचिए आप। To show its importance. जी To show its importance. बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? To show its importance. आप चैट बॉक्स में लिखें एक बार, ठीक है, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। जी कोई और बताएगा? आयरा बेटा आप उसमें लिखें चैट बॉक्स में। एनीवन? क्यों अल्लाह पाक क्यों खा सकता है कसम? अल्लाह पाक को जरूरत नहीं है ना कसम की, वो तो उसकी बात तो सच्ची है। फिर आखिर क्यों? जी आप लोग सोच रहे हैं, आपके पास 2 मिनट्स है। अगर कोई भी आपके माइंड में आंसर आ रहा हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अल्लाह पाक ने कसम इसलिए खाई है क्योंकि कसम तब खाई जाती है जब किसी को बात का यकीन दिलाया जाता है ना। और अल्लाह पाक ने यहाँ इसलिए खाई है ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा काम डाउन कर सके कि आप परेशान नहीं हो। अल्लाह ताला है और दिन और रात को बदलना। देखिए जिंदगी में हमारी जो है वो दिन भी आता है, यानी कि हमारे कुछ दिन बहुत बेस्ट होते हैं और कुछ दिन हमारे बहुत वर्स होते हैं। कभी हमारी जिंदगी में क्या होता है, बिल्कुल सूरज की तरह रोशनी होती है, और कभी हमारी जिंदगी क्या होती है, बिल्कुल अंधेरों से भर जाती है। इसलिए आगे फरमाया मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। तो ये हम सब के लिए है। आप खुद सोचिए, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, हमारे अंदर हमारे पर उदासी होती है, हम सैड होते, इतना ज्यादा सैड होते, तो हम क्या करते हैं उस वक्त? हम इतने ज्यादा उदास हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? हम ना नेगेटिव होने लगते हैं, हम पेसिमिस्टिक होने लगते हैं, हमें लगता है कि अल्लाह पाक तो हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना यहाँ पर हम सब के लिए एक मैसेज दिया कि अगर कभी भी हमारे ऊपर बुरे हालात आ जाएं, कभी हमारी जिंदगी में अंधेरे आ जाएं, डार्कनेस आ जाए, सैडनेस आ जाए, तो उस वक्त भी हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हमारा रब हमें कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। तो अल्लाह पाक ने यहाँ क्या फरमाया, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि ना तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है। और इसके बाद क्या फरमाया, सबसे आई थिंक कि मेरी सबसे फेवरेट आयत है ये, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, यकीनन तुम्हारे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। आपको पता है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब भी मैं किसी चीज में परेशान होती हूँ, लाइक मेरे एग्जाम्स होते हैं, तो एग्जाम की रात हम सबको नर्वसनेस सी होती है, हम सब परेशान होते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कैसा होगा। तो उस टाइम क्या होता है, हमें डर लगने लगता है। लेकिन उस मौके पर जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग आयत होती है वो यही होती है कि ठीक है, आज ये जो मेरा आगाज है ना,
یہ جو ڈر کا آغاز ہے یہ بہت جلد سکون میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی جو میرا آغاز ہے اس کا انجام بہت بہتر ہونے والا ہے. تو ہر چیز کو اگر کبھی بھی آپ کچھ سٹارٹ کر رہے ہو اور آپ کو ڈر لگ رہا ہو یا پھر آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہو, آپ کی طبیعت خراب ہو, تو اس موقع پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس موقع پہ آپ بس یہ سوچ لیں کہ ابھی بس یہ ابھی کا ٹائم ہے, ابھی یہ تھوڑا سا دکھ ہے, ٹیمپرری دکھ ہے, یہ اٹ از ٹرانزینٹ, اٹس ناٹ پرماننٹ. ٹھیک ہے, یہ ٹیمپرری دکھ ہے, یہ چلا جائے گا. جب آپ یہ سوچیں گے نا تو پھر آپ کو کوئی خوف کوئی غم کچھ نہیں رہے گا. پھر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ جو آج کا دن ہے نا, جو کل کا دن ہوگا وہ آج سے بہتر ہوگا. جو ہماری آخرت ہے وہ یہاں سے بہتر ہوگی. یہاں پہ دیکھیں دو میننگس ہیں. ایک تو ہمارا آخرت کا میننگ ہے کہ جو آنے والی آخرت ہے, قیامت کا دن ہے, وہ دنیا سے بہتر ہوگا. اور دوسرا میننگ یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں جو مطلب ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, تو وہ سب ختم ہو جائے گا. کسی بھی کام کا آغاز کرنے کا یا کبھی بھی کسی بھی چیز کا, تو وہ اوور ٹائم کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ always helps us اور ہمارا آغاز سے بہتر انجام ہوتا ہے. رائٹ, پھر کیا فرمایا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا. اب اللہ پاک یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کنسول کر ہی رہے ہیں, ہمیں بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی ہو, ہمارے پاس وہ بھی ہو. رائٹ, آپ سب یگسٹرس ہیں تو آپ کے پاس اچھا ٹھیک ہے, آپ سب یگسٹرس ہیں تو مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی خواہشات ہے, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ چیٹ باکس میں مل سکتے ہیں, آنسرس لکھیں. آپ لوگوں کی کیا کیا خواہشات ہیں؟ ہم سب کی ہوتی ہیں, وی آر ہیومنس. بتائیں آپ سب کیا چاہتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو چاہتا ہوگا نا, خواہشات ہوتی ہیں ہم سب کی, ہم سب کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ چیٹ باکس میں آنسر کریں. دیکھیے آپ سب نے انٹریکٹ تو کرنا پڑے گا نا, ورنہ کلاس بورنگ ہو جائے گا. میں بولتی جاؤں گی, آپ سنتے جائیں گے, بلکہ مجھے بھی تو آپ سے سیکھنا ہے نا, اور آپ نے مجھ سے سیکھنا ہے. تو ہم سب یہاں سیکھنے آئے ہیں ایک دوسرے سے. تو آپ لوگ پلیز چیٹ باکس میں آنسر کیجئے. بی کانفیڈنٹ, آپ مسلمات ہیں, یگسٹرس ہیں, یگسٹرس تو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. اوکے, آئرہ کا یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک سے راضی ہو جائے, اینڈ ہنا خالد کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. اوکے, اور کس کا کیا خواہشات ہے؟ اچھا, دنیا کو لے کر کیا خواہشات ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہو؟ آپ کے پاس ایک بہت اچھی سی گاڑی ہو, کیا ہو, آپ کیا خواہشات ہے دنیا کے؟ آپ کے اچھے مارکس آئیں, آپ ٹاپ کریں, آپ اچھے ڈاکٹر بنیں, آپ کا پروفیشن اچھا ہو, کیا کیا خواہشات ہیں آپ کی دنیا کو لے کر؟ اوکے, خلاف رفیق, آپ کی بلیسنگز ان لائف, اور کس کا کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا کیا خواہشات ہیں؟ ہم سب کی ہوتی ہیں. I only got 3 responses. Okay, kindness in life, ٹھیک ہے. To give my best in words. Wow, Manal, great. تو ہم سب کی خواہشات ہوتی ہیں, ہے نا, ورڈز میں بیسٹ دینا ہے, زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے, ہے نا, ہم اللہ پاک سے قریب ہو جائیں, اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں, تو یہ سب خواہشات ہیں, بہترین اخلاق والے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب چاہتے ہیں یہ سب کچھ, اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, ہے نا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہو, اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا, اور ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے, یا پھر ہم کبھی کبھی بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, یا ہمارے پر ایموشنز حاوی ہوتی ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, خود کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, تو لیکن کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں نا, بہت زیادہ تھک جاتے ہیں, اتنا زیادہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب بس اینڈ آف لائف ہے, اب کچھ نہیں بچا ہمارے پاس. یہی لگتا ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی آؤٹ کم نہیں دکھ رہا,
है ना, हमें कोई फाइनल रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो उस टाइम पर अल्लाह पाक की कुरान की ये आयत अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत से हमारे लिए नाजिल की है कि वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, तो ये हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला है वो हमें बहुत जल्द इनाम देंगे, बहुत जल्द हमें आउटकम देंगे, इतना देंगे कि हम खुश हो जाएंगे, फिर हम भूल जाएंगे कि हमारे ऊपर कोई गम भी थे, कभी हम जो है वो डिप्रेस्ड भी रहते थे, हम भूल जाएंगे सब कुछ। फिर आगे क्या फरमाया, अलम यजिदका यतीमन फआवा। तो अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के न अब्बा थे, यतीम वही तो होते जिसके अब्बा नहीं होते, तो उनके उनके वालिद भी नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या फरमाया कि अल्लाह कह रहे हैं कि क्या उसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी, यानी कि उसने तुम्हें जो है वो फीड नहीं करा, उसने तुम्हारी हेल्प नहीं करी। और देखिए हम अगर खुद देखें अपने आप को भी, तो हम जब दुनिया में आते हैं हम क्या होते हैं, एक बेजान वजूद होते हैं, एक छोटा सा बिल्कुल नर्म नाजुक सा वजूद होते हैं, यानी कि हम अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक तब क्या करता है, हम अपने आप को यतीम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हम एक ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, तब भी तो अल्लाह पाक हमें फीड करता है, हमें किसी के सुपुर्द करता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स के हाथ में हमें देता है ताकि वो हमारी हिफाजत कर सके, राइट। तो अल्लाह ताला हमें फेवर्स गिनवा रहे हैं कि अल्लाह ताला के कितने ज्यादा फेवर्स हैं हम पे, राइट। फिर आगे फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फहदा, और तुझे राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी। तो ये हम सब मुस्लिमात के लिए जो है वो एक आयत है, एक वर्स है, एक लेसन है कि अल्लाह ताला ने क्या किया है, हमें हिदायत दी है। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, हमें हिदायत दी है, हम गुमराह थे, हमें नहीं थी दीन की नॉलेज, हमें नहीं था इस बात का अंदाजा कि अल्लाह पाक कौन है। हमें अल्लाह पाक ने खुद को समझने के लिए, खुद से मोहब्बत करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है ना, तो क्यों दिया? अल्लाह पाक चाहते तो नहीं देते, आखिर अल्लाह पाक ने क्यों दिया हमें, बताएं। क्यों दिया अल्लाह पाक ने? अल्लाह ताला तो हमें क्यों दिया? क्योंकि अल्लाह पाक हमें क्या देखना चाहते, अल्लाह पाक हमें जन्नत में भेजना चाहते, अल्लाह पाक किसी को भी गुमराह नहीं करना चाहते। लेकिन हमें पता है हम इंसान होते हैं जो अपने लिए खुद अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं, खुद अपने लिए हम क्या कर लेते हैं, हम खुद के लिए जो है वो नाफरमानी का रास्ता चुन लेते हैं, हम अल्लाह पाक का कहना नहीं मानते। तो ये हम है, हाँ, क्योंकि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, यस लाइबा, वो चाहता है कि हम उसके दीन को समझें, वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बस ये है कि हमने कभी अल्लाह ताला की मोहब्बत को रियलाइज नहीं किया। अल्लाह पाक इतना सब, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा फेवर हमारे ऊपर यही है कि हमें अल्लाह पाक ने मुसलमान पैदा किया है, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है अगर आप आज नॉन मुस्लिम्स को देखें, उनके पास सब कुछ है, दुनिया की हर तरीके की, दुनिया की हर नेमत होगी उनके पास, अच्छा घर होगा, गाड़ी होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा उनके पास, लेकिन उनके पास दीन नहीं है। और ये दीन नहीं है ना, इसलिए वो बड़ा बेचैन रहते हैं। उनकी रूह जो होती है ना वो मरी हुई होती है, वो जिस्म होता है उनका बस, है ना। लेकिन हम जो मुसलमान हैं हमारी रूह भी जिंदा होती है। आपको सोचे, आपने अपने आप को मुसलमान कहा है, आपने इस्लाम कबूल किया है, आपने खुद को मोमिन कहा है, राइट। तो जब आपने अपने आप को ये टाइटल दिया है और ये अल्लाह पाक ने दिया, तो लेकिन फिर आपने इसको, इस टाइटल को एक्सेप्ट किया है, राइट, तो फिर क्या है, आपने इसका हक भी तो अदा करना पड़ेगा ना। फिर आपने यही हिदायत, जो असल हिदायत है, आपने वो लेनी पड़ेगी। आपने अल्लाह पाक को नाराज नहीं करना, क्योंकि अल्लाह पाक आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा वाली। अगर अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत नहीं करते तो वो आपको हिदायत नहीं देते। Allah subhanahu wa ta'ala has created us for the Jannah, but it is we who chooses the path of Jahannam for ourselves. अब
म्यूजिक सुनते हैं, हम सॉन्ग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं भाई? अल्लाह पाक ने तो हमें कुरान में बता दिया कि सब कुछ गलत है, लेकिन नहीं, क्योंकि हम अपने नफ्स का कहना मानते हैं, शैतान का कहना मानते हैं, अपने दुश्मन का। आप खुद सोचिए, अपने दुश्मन का कौन कहना मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम अल्लाह पाक को नाराज नहीं करें, क्योंकि अल्लाह पाक का ये सबसे बड़ा फेवर है हमारे ऊपर कि उसने हमें जो है वो गुमराह पाकर हिदायत दी है। वजदका ज़ालिमन फहदा। सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स अगर कोई है तो वो ये है कि हम मुस्लिम और मोमिना हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो है अल्लाह पाक ने हमें खाने पीने को दिया है, अल्लाह पाक ने हमें रहने को दिया है, या अल्लाह पाक की आई थिंक यू नो हिदायत के बाद की नेमतें। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी जो है ना ब्लेसिंग्स में, वो हिदायत है, वो मुस्लिमा का टाइटल है, लेकिन अब हमें इसकी लाज भी रखनी है खुद से। फिर आगे फरमाया ववजदक आइलन फअगना, और उसने तुम्हें नादार पाकर गनी नहीं कर दिया, यानी कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह पाक ने तुम्हें क्या करा? तुम्हें अल्लाह पाक ने बहुत कुछ अता कर दिया, राइट? तुम्हें अल्लाह पाक ने बिल्कुल गनी कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, राइट? तो ये अल्लाह पाक के बहुत बड़े बड़े 3 फेवर्स हैं हमारे ऊपर कि अलम यजिद यतीमन फआवा ववजदका ज़ालिमन फहदा ववजदका आइलन फअगना। अच्छा सिस्टर्स, बात सुने कि आप लोग ना दोबारा से ये ज्वाइन कर लें, बिकॉज मीटिंग एंड होने वाली है 5 मिनट्स में, और इंशाल्लाह फिर हम जो है अपने आगे की वर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इसको एंड कर रही हूँ, आप दोबारा से इसको ज्वाइन कीजिए, ओके? ठीक है, आप सब लोग समझ गए ना? जी जी, अच्छा जी, आप लोग इसको दोबारा से ज्वाइन कीजिए, ठीक है? मैं इसको एंड कर रही हूँ बिकॉज एंड होने वाली है 5 मिनट्स में।